Good afternoon to both of you. Good afternoon, sir. Okay, so basically this session is for your scholarship. Okay, CFA scholarship, how to apply the essay. Clear? Now, till now, have you created your account on CFA website? Yes or no? No. No. Okay, both of haven't done it yet. Okay, so just give me your short introduction, both of you, one by one. My name is Ashneet and I'm currently pursuing BCom and I'm giving some two exams. I'm doing BCom from Chandigarh ST College. Okay, and what's the reason of choosing CFA? Basically, I am interested in finance and I want to pursue it and know others about finance and educate others also about finance so that they can also enter into this field. And I'm interested. Like there are so many courses in finance, but why only CFA? How you come up to that conclusion? No, for us, me, CFA is best. Basically, I was confused between CA and CFA. Only these two options I considered. Okay, But CA I didn't go for because of some suggestions of the families and all. So I decided to go for CFA. okay, then you decided to go for the CFA. Yeah. Got it, After doing the research and all. got it. And what about? Basically, it was an emerging option also, so that's why. Okay, got it, got it. And you, please, Sneha. My name is Neha. I am pursuing BCom honors from SD College, Chandigarh. And now I am giving my SAM2 exams and about to finish first year of college. And now I want to start CFA. What's the reason of choosing the CFA? Actually, I have interest in finance and want to pursue MBA in finance further. So first, I want to pursue CFA. Okay, that's why you want to do CFA, right? Yeah. Okay, so now any one of you will open your CFA website. Okay, if you want, I can share the link with you on the chat. Now, after that, just another one will just follow the step which one is following, and one will share the screen. Okay, so that I can see what you are doing. So, who want to take it, Sneha or Ashmit? Who want to share the screen? Neha, will you? Okay, I will follow Sneha. both are thinking who to do. Chalo. Okay, Sneha. So I have shared the link of the CFA website in the chat. Just open it in your laptop and start sharing your screen. I also need to open it now. I don't need to share the screen, but I need to open You just open and follow the step by steps. Okay. You just have to follow the steps. That's it. And Sneha, you open the link and share your screen. So how you found us, Ashmeet? Basically, I was searching about the institute, so on ChatGPT, I did, and basically, I was reading about the reviews, and I saw your review. A girl gave it, and Okay. so we started researching about your institute, and you gave us the that video to look, Hannah. So Okay. we liked it, so we So finalized. basically, From any chat. other institute also, but we didn't like their way of teaching. So nowadays, students are using which coaching to choose also from the chat GPT. Yeah. ChatGPT and reviews basically. Too advanced, this Gen Z generation. How much is your attendance mandatory in your college? 75. 75. Okay. So do manage it along with your CFA preparation. Okay. Actually, our college is like basically semi-government, not actually government, so we can give the fine and everything is sorted by. Okay. Now, Ashmeet, look at the screen. Okay. And start following the step one by one. See on the top right, there is a create account. If you haven't created the account yet, so start creating the account first of all. Yes. Okay.
Yes, start with your email ID. Click on this box. Yes. Now click on continue. Okay. Both of your email ID, you must have received a verification code. Where we have received email. Yeah, you have received it in the email. Okay. So enter that verification code over here. Okay. So now you guys are following screener.com JSW Energy. Very good. I'm really happy to see you guys at this age following the stock market so deeply. Yeah, verify this. Continue. Now create the password. Yeah, fill all these details. Now over here, your first name as per your passport details. Okay, no spelling mistakes. Do it very carefully. I don't have a passport. You need to make one, both of you. Okay. So Actually, what my name is Ashmeet Kaur. So in that, last name, I need to write Kaur. that name is in your Aadhaar card as well, right? Yes. So Rashmi Kaur. Rashmi is your first name and Kaur is your second name, right? Okay. So put it accordingly. Last name, I need to put it Kaur, right? Yes, yes, yes. I don't have a last name in my Aadhaar card, only first name. Okay. And what about your parents? They have. They have no. So is it any possibility that you can update your Aadhaar card? Is it compulsory to put it here? You see they have a mandatory mark over here. Star mark is here. I don't have it on Aadhaar card. No, is it possible to get it changed on the Aadhaar card? Is there any possibility? I don't know it. Okay, you don't know. So just do one thing. Just put a full stop over here. Just put a full stop. But what happened now when you are in the international now, generally they always demand for the last name. Okay. So may I put it here? No, you will put it over here, but it's not in your passport. Then it will become a very I big issue. don't have passport yet. Yeah, but if you'll make one passport, then passport will take the name from your Aadhaar card only, na? Yes. So that will create a concern for you. Okay, so put the full stop and move ahead. We'll see what we can do at the later end. Okay, but for the timing, you don't have it. You can talk to your parents if there is a possibility to update your Aadhaar card, then you can get it done. No issues at all. I'm done with it. Okay, so now you can move ahead with create account. I think your passwords are not same. Please follow the instruction. Capital, small, all things you have to use as mentioned on the top. Ashmeet, your account created? Yes. Okay. Okay, perfect. Now click on continue. You can save the password if you want, so that you every time you don't have to enter it. Okay. Now look at the CFA website. Go down. Check
everything about the CFA. I think you have done all these survey of the CFA website earlier as well, right? Now click on the program on top. Click on program. Now click on CFA. CFA program. CFA program is not getting clear. Click on overview. Now I'm sharing one link with you on your chat. Follow that link. Now open this link, scholarship link, which I have shared with you on your chat. Okay, this is your scholarship link over here. Now come down. You see there is an option for apply for scholarship. Access scholarship. Access, yes. Now apply now. See, both of you have two options of scholarship. One is access scholarship, another one is women scholarship. Okay. Right now we are applying for access scholarship. Got it? Okay. Okay. Now you read all the details. It opens on 29th and it will closes on May 19. Clear? And this scholarship is basically for whom? You see, who may not be able to afford the full program fees and are not already registered for the CFA program exam. Means you have not registered yet for the exam. Clear? Now apply. Sir. Yes, now apply. Okay. First of all, see how it works. How long is this video? If you want, you can close it. You can fast forward the video. Move ahead quickly, step by step. Okay, close it. Close the video. Now apply. I think you need to log in over here, or you are in the wrong link. Click on the CFA scholarship again. Access scholarship. Click on access scholarship tab beside you. Now click on this access scholarship rules. Read all these rules first.
Is there anything which you are not meeting with the rules? I am lagging. After the video, what I need to do? What? After that video of how it works, what I need to do? Oh, you might have not checked what she was doing. Click on the Access Scholarship tab again. Access scholarship. Rules I need to check. Sneha, show her again. Yeah, click on this again, rules, and read all the rules. Do you qualify all the rules? Are you eligible to apply for the scholarship? Read all these 6 rules. And Sneha, make this small box smaller, or you can cut this box from here because it's difficult for me to see the whole screen. This box, right side, Google Meet box. Yeah. No, minimize it. Minimize it or crop. I don't know. Yeah, make it smaller. Perfect. Now it's perfect. Yeah, click on login on top. Yes. Click on view program. Now fill out the eligibility profile. Click on scholarship. Now click on save my profile. Now click on access scholarship. Now click on apply. Okay. Yes, access scholarship application. Scroll down. Scroll down. Yes, click here. Save and continue. Next. Yes. Every time save and continue. Otherwise, you will miss your previous task. Come down. Next. Okay. Choose your country. India. From the list, choose your country, India. Mhm. Go slowly. Don't too fast. Yes. Yes, CFA Society India. Choose CFA Society India. Yes. Scroll down. Okay. Now, in the first exam level for scholarship, choose CFA level 1. Now, both of you put your date of birth as per your Aadhaar card. Exact date of birth. No, first of all, remove all the text from there. Yes, remove all. Now start typing. Now put your gender. अरे आपका तो बर्थडे अभी अभी होके गया है. Just 11 days before. Happy belated birthday. April, the month नहीं 4 month है और 5 date है. Okay, okay, okay.
Still happy belated birthday Oh, thank you. party. Put full There's an stop. error coming in date of birth. I wrote 23/03/2006. No, एक बार चेक कर लो DDMM है या MMDDD है. MMDD. MMDD है तो मंथ आपका पहले आएगा, DD फिर आएगा, देन ईयर आएगा. Okay. ठीक है. ओके, अपना ईमेल एड्रेस वही डालना जिससे अभी लॉगिन किए थे. नाउ पुट योर एग्जैक्ट एड्रेस एज पर योर आधार कार्ड. Street, address, complete, city, state, all the details. No spelling mistake, completely as per your Aadhaar card or passport. Save and continue editing. Save. First click on save and continue editing. What's this market? Yes, choose. Search India. Here. Yes, search India. Search India. India, INDIA only. Yes, India. Save and continue. एक बार रिव्यू कर लो जो भी डिटेल्स डाले हो. चेक इट वंस. Now put all the details over here. Do you have any dependents? I don't think so. You guys will have any dependents. You're 19-year-old. You know you don't support anyone, so click on 0. Okay. You are not currently employed. Click on no. Student status, yes. Okay. Then please indicate if you are currently enrolled, part-time or full-time. Your college is full-time. Do you have financial support from your family for educational expense? Parents पैसा देते हैं कि नहीं देते हैं अस्मीत? सर लास्ट वाले में जो जिसमें डिटेल्स भरी थी उसमें एरर आ रहा है. किसमें एरर आ रहा है? जिसमें डिटेल्स भरी एड्रेस वाली. ओके, स्क्रीन शेयर करो एक बार. अच्छा रुक जाओ, एक बार मैं स्नेहा का ये वाला सेव एंड कंटिन्यू करवा देता हूँ. स्नेहा एक बार ये फटाफट क्लियर कर दो. डू यू रिसीव, पेरेंट्स से पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं पढ़ाई के लिए? मिलते हैं. मिलते हैं. तो मिलते हैं तो फिर आगे भी मिल जाएंगे. यहाँ पे लिखो नो, नहीं मिलते हैं. ठीक है ना? स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन इनकम नाउ. Less than 10,000.
in dollars. हाँ, in dollars. Less than $10,000. Okay. Click करो less than $10,000. Next, come down. Less than $25,000. Okay. Now give me 1 minute, Sneha. I will share all the details of your essay with you. Just 1 minute. Can you scroll it up? I can, so that I can fill. हाँ स्नेहा, आप इतने अपना स्क्रीन शेयर करके दिखा दो मेरे को, जब तक मैं उनको उनकी ऊपर डिटेल। scroll कर दे. क्या? Yeah, I'm talking to Sneha. हाँ अश्मित, आप दिखा दो। स्क्रीन शेयर कर रहे हो क्या अश्मिता? आपका वो एरर आ रहा था ना अश्मित? Okay, वो एरर तो हो गया, नेक्स्ट पेज पे आ गई. अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आ गए हो। ये सारा डिटेल्स फिलअप कर दो फिर। प्लीज इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन योर हाउसहोल्ड. इसमें 0 करना है. हाँ, एक बार स्नेहा को बोल दो, एक बार ऊपर से आपको दिखा देगी पूरा। Okay. 0. No. Then yeah. 0, no. Okay. Thank you. हो गया स्नेहा? मैंने अभी आपको ना एक मैसेज भेजा है गूगल चैट पे, वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करो। यहाँ पे नहीं आ रहा है क्या? रुक जाओ, मैं व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। अश्मित, मैंने आपको भेज दिया, एक बार आप स्नेहा को फॉरवर्ड कर दो ना मैसेज, क्योंकि आपका चैट टॉप में था मेरे। Okay. This is of Sneha, right? हाँ, ये स्नेहा का है, मैंने अभी जो भेजा है। Okay.
स्नेहा मिला नहीं क्या अभी तक? अश्मित आपने भेज दिया ना इनको व्हाट्सएप पे? Yes, sir. अपना व्हाट्सएप ओपन कर लो ना, यहाँ पे वेब में, व्हाट्सएप वेब में, क्योंकि कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा ना अभी आपको। यहाँ पे हो नहीं रहा है, आई हैव ट्राइड, आफ्टर कुछ पैराग्राफ्स वो विजिबल नहीं हो रहा है। नहीं, अभी आपका ओपन था ना लिंक, जहाँ पे आपने डाला हुआ था। हाँ, इसकी फर्स्ट लाइन दिखा दो एक बार। देखो, हाँ, एज अ पैशनेट, ठीक है। एक बार ना पूरा अच्छे से रीडिंग कर लो, कहीं पर आपको कोई चेंज करवाना हो तो मेरे को अभी बता देना। सेकंड पैराग्राफ भी डाल दो। अश्मीत सेकंड पैराग्राफ भी भेज दो इनको। Please, sir. ठीक है। एक सेकेंड कंप्लीट मत करो स्नेहा, एक बार पहले पूरा रीड कर लो। हाँ, ये दोनों ऐसे जो है ना, एक बार प्रॉपरली अच्छे से रीड कर लो। देखो यहाँ पे, देखो ये रेड लाइन आई हुई है ना, द सीएफए स्कॉलरशिप से पहले ग्रामेटिकल एरर, मिस्टेक्स, सब कुछ वर्क ऑन करना है, कोई भी छोटी एरर नहीं होनी चाहिए। एज अ पैशनेट फिनेंस स्टूडेंट होता है ना यहाँ पे। हाँ, नहीं मुझे लग रहा है आपने ना शायद अपोजिट कर दिया है। जो एज अ पैशनेट वाला जो है, और दोनों में आपने सेम डाल दिया है क्या? यस, आपने दोनों सेम डाल दिया है शायद। अश्मित आपने दोनों भेजे हैं ना इनको, देखो फर्स्ट लाइन अश्मित की, एज अ पैशनेट फिनेंस स्टूडेंट जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे आएगा। हाँ, उसको डिलीट करो। हाँ, इसको डिलीट करो, पूरा डिलीट करो इसको। हाँ, अब एक बार व्हाट्सएप मैसेज ओपन करो, अश्मित का ओपन करो, ऊपर जाओ।
हाँ, ये वाला ओपन, ये वाला पूरा कॉपी करो। नहीं, सपोर्ट तक, हाँ copy करो, पेस्ट करो यहाँ पे। ठीक है, अब एक बार फर्स्ट लाइन देखो। हाँ सही है, करेक्ट है। सेकंड वाला, ठीक है। अब तुम इनको पूरा अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। एक बार वापस से मैसेज में जाओ, व्हाट्सएप मैसेज में। कोई वर्ड मिस नहीं हुआ है ना कॉपी करते टाइम? ठीक है, अब एक बार स्नेहा सबमिट करने से पहले प्रॉपर्ली रीड कर लो। अश्मित, तब तक आप अपना स्क्रीन शेयर कर दो, आपका सेट करवा देता हूँ, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। स्नेहा एकदम वर्ड बाय वर्ड रीड कर लो, कहीं पर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक, कोई स्पेसिंग का एरर, एवरीथिंग यू नीड टू वर्क अपॉन, ठीक है ना। Shall I show from the starting? हाँ, मेरे को एक बार स्टार्टिंग से पूरा दिखा दो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेज ना, कोई मिस्टेक हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यस करेक्ट, ठीक है, ओके। अब ये देखो, इतनी सारी रेड लाइंस आ रही है, उसमें एनम के ऊपर एक बार राइट क्लिक करो, एनम को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करो, देखो क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। Annual order. क्या? Annual. पर एनम, What shall I select? या वो राइट क्लिक करते हैं ना, स्पेलिंग ग्रामर वाला ऑप्शन आता है ना। Use in and spell check. यस यस, क्योंकि स्पेलिंग तो करेक्ट है, बट व्हाई दे हैव केप्ट इट अ रेड लाइन? It's not added to dictionary, I guess that's why. ठीक है, ऐड कर दो, फिर शो नहीं करेगा। बस हो गया, और कोई रेड लाइन दिख रहा है? नहीं। ठीक है, चलो मैंने व्हाट्सएप ओपन करो, एक मैसेज भेजा है। This I need to fill in the second one. यस, Okay. Is it okay? अब एक बार प्रॉपरली दोनों ऐसे को रीड कर लो, ठीक है। So the studying hours at 30 to 35 hours, is it sufficient or shall I increase it? देखो, बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट जनरली इतना ही टाइम मिलता है, बिकॉज अगर आप कॉलेज जाते हो तो नॉर्मली क्या होता है, कॉलेज 5 to 6 आवर्स का होता है, ठीक है ना। तो 6 आवर्स अगर आपने कॉलेज में दिया है, 2 आवर्स का ट्रेवलिंग भी होता है, 2 आवर्स का रेस्ट भी होता है, 8 आवर्स का स्लीप भी होता है। सो इसको कंसिडर करते हुए 30 to 35 इज अ गुड वन, Okay. ठीक है ना। नॉर्मली आपको ज्यादा पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 35 लिख दिया तो यू हैव टू स्टडी 35 ओनली। Okay.
ठीक है ना, आपको 60 आवर्स पढ़ना है, 70 आवर्स पढ़ना है। एक बार प्रॉपरली रीड कर लो बिफोर यू सबमिट। एक बार ही प्रीवियस पेज चेक कर लो कि उसमें जो एरर आ रहा था अब तो वैसे ठीक हो गया। हाँ ठीक है, यहाँ पे पहले सेव एंड कंटिन्यू। प्रीवियस हो गया। ठीक है, अब शायद मेरे को लग रहा है वो सेव हुआ नहीं होगा, एक बार फिर भी चेक करो। ये तो ठीक है, नेक्स्ट करो एक बार। हो गया। सेव है ना? हाँ। ठीक है चलो, अब इसको सबमिट कर दो। मार्क एज कंप्लीट बाय क्लिक हियर, पहले बटन पे क्लिक करो, बाय क्लिक हियर पे। यस, मार्क एज कंप्लीट। ठीक है, अब आपका देखो रिजल्ट कब है। इसमें ना डेट गलत है लैपटॉप में। किसमें? लैपटॉप में ना डेट गलत है तो फिर इसमें डेट गलत ही आएगी रिजल्ट। वो तो डेट आपके लैपटॉप से ही उठाएगा ये। रिजल्ट स्नेहा चेक कर देखिए एक बार। इज इट कंप्लीटेड? शैल आई स्टॉप शेयरिंग इट? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। स्नेहा आपका हो गया तो एक बार आप दिखा दो, फिर आप सबमिट कर दो। ठीक है, परफेक्ट है, सेव कर दो इसको। यस, सबमिट। गो टू माई एप्लीकेशन। ये देखो स्कॉलरशिप का डिसीजन आपको 16 जून को मिल जाएगा, ठीक है ना। एंड ये स्कॉलरशिप आपकी फरवरी 2026 के लिए वैलिड है, ठीक है ना। तो स्नेहा आपका तो कंप्लीट हो गया है, बेस्ट ऑफ लक, प्रे टू गॉड कि सेलेक्ट हो जाए, ठीक है ना। आगे क्या करना है? बस अब मेरा पढ़ाई। वो आया नहीं आई गेस आगे सक्सेसफुल सबमिटेड। एक बार आपका सबमिट हो गया है? लाइक मैंने स्क्रीन शेयर कर। हाँ एक बार स्क्रीन शेयर कर दो आप अपना। दिस इज द एंड पेज। ठीक है, सबमिट करो। यहाँ पे ये सबमिट करें? हाँ सबमिट कर दो। ये सबमिट। ओके, सो ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा समझा दिया है और आपका करवा भी दिया है कि स्कॉलरशिप कैसे होता है, ठीक है ना। अब द ओनली थिंग लेफ्ट विच इज इन योर हैंड इज टू स्टडी। अब जो होगा वो भगवान अपने आप देख लेगा, देना है नहीं देना है, पढ़ना आपके हाथ में है, ठीक है ना। मिलने के बाद भी अगर नहीं पढ़ोगे तो भी वो व्यर्थ है, पता है ना। द ओनली थिंग विच यू कैन डू नाउ इज टू स्टडी हार्ड। आप लोग के ग्रुप में सिर्फ आप लोग ही सीएफए कर रहे हैं या सब लोग सीएफए कर रहे हो? दोनों ही कर। तो कितना प्राउड फील होता होगा, 200 बच्चों में सिर्फ 2 ही बच्चे सीएफए कर रहे हैं। एक यूएस डेजिग्नेशन है, इट मीन्स अ लॉट। माइट बी अभी आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगी, बट आफ्टर 5 years व्हेन यू विल बी वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, एक अच्छी कंपनी में, यू विल अंडरस्टैंड दैट यस आई हैव डन समथिंग बेटर, ठीक है ना। सो मेक योरसेल्फ, योर पेरेंट्स, थोड़ा बहुत मुझे भी मेक प्राउड, ठीक है ना। सो बी द बेस्ट, गिव योर बेस्ट, द ओनली थिंग विच आई वांट। बिकॉज देखो अभी आप आई थिंक 18 years old या 19 मैक्सिमम, है ना। अभी आपके पास पूरी लाइफ बाकी है टू बी सक्सेसफुल। और जो अर्ली सक्सेस का मजा होता है ना, Yes. वो 40 साल की सक्सेस में मजा नहीं आता है, पता है ना। BMW अभी चलाने में मजा है, 40 साल के बूढ़े होने के बाद क्या ही चलाओगे, है ना। तो ये सोच लो कि पढ़ना है। एक बहुत नींद कितनी आती है आप लोग को, बहुत सोते हो, नींद बहुत आती होगी, है ना। इस एज में यही लगता है कंफर्ट जोन,
सो जाओ, है ना। लेकिन फैक्ट बताऊं, जब तक शरीर गिर ना जाए ना अपने आप, तब तक पढ़ते रहा कर। नींद को जब आना होता है ना, वो अपने आप आ जाती है। अभी क्या करते हो, अभी 10 बजे बेड पे चले जाते हो, ये सोच के कि सोएंगे सुबह जल्दी उठेंगे, और रात के 2 बजे तक नींद नहीं आती। करेक्ट, एक जनरल बिहेवियर है, नहीं आती है। 4 घंटे खराब हो गए, वही 4 घंटे पढ़ लेते, नींद को 2 बजे अपने आप आ जाती। तो तब तक पढ़ लो जब तक नींद अपने आप ना आ जाए। पता है, हाथ में बुक रहेगी ना तो भी नींद आ जाएगी अगर नींद को आना होगा तो। लेकिन हाथ में इंस्टाग्राम है ना, वो नींद आने नहीं देता। ये एज है जहां पे स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिसगाइड होते हैं, स्नेहा एंड अश्मित, सबसे ज्यादा। एंड अगर आपने अपने आप को इस एज पे बैक कर लिया, यू हैव कंट्रोल ऑल योर मूड्स, योर बोलते हैं ना, मुझे ये पसंद है और मुझे ये करना है, नहीं मुझे पढ़ना है। फैमिली फंक्शन में जाना है, 2 दिन खराब होंगे, नहीं मम्मी मुझे तो पढ़ना है। फंक्शन में लोग फिर तुम्हें बुलाएंगे कि अश्मित आओ, और तुम बोलना चाचा जी 2 लाख रुपए दोगे तो ही आऊंगी। ऐसी वैल्यू बन जाएगी तो मजा है ना। उस वैल्यू के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आज हार्डली मैं अपने कोई फैमिली फंक्शन में जाता हूँ, हार्डली, और सब बुलाते रहते हैं दीपक आ जाओ, दीपक आ जाओ। क्यों? टाइम नहीं है, और टाइम है भी, वहां जाके टाइम वेस्ट होगा। बात समझ रहे हो? इससे बेटर है मैं वो टाइम आप लोग के ऊपर डिवोट कर देता हूँ, 2 स्टूडेंट्स पास ही हो जाएंगे इसी बहाने। ठीक है ना। सो एकदम प्योर फोकस करो आज से कि मुझे पढ़ना है। ठीक है ना। जरूरी नहीं है हर टाइम सीएफए पढ़ना है। स्टॉक मार्केट देखो, बिजनेस न्यूज चैनल्स पढ़ो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो। ठीक है ना। व्हाट सी अराउंड, व्हाट हैपनिंग अराउंड यू। किताबों से ज्यादा ज्ञान बाहर है। सच्ची सच्ची बताओ, दोनों न्यूज़पेपर रीड करते हो? मेरे से झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। नहीं करते? अश्मित क्यों नहीं करते? गिव द रीजन। कभी नहीं किया। नहीं, क्यों नहीं किया? कोई रीजन? चलो स्क्रीन शेयरिंग हटा दो, लेट्स 10 मिनट कम्युनिकेशन, शायद आप लोग का कुछ फायदा हो जाए। क्यों नहीं किया अश्मित? इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट नहीं था। फायदेमंद था कि नहीं था? जी, यूजफुल है कि नहीं है? यूजफुल। न्यूज़पेपर रीड करना यूजफुल है ना, तो क्यों नहीं करते हो? देखो, बहुत सारी चीजें ना इंटरेस्टिंग नहीं होती है बट यूजफुल होती है। इंस्टाग्राम इंटरेस्टिंग है बट क्या यूजफुल है? एक पोस्ट डाल दोगे तो शाम तक यही चेक करोगे कि कितने लाइक्स आए। फैक्ट है। अब क्या वो लाइक्स तुम्हें कुछ करके देंगे, कोई बेनिफिट? उतना टाइम अगर कोई अच्छी वीडियो देखते, कोई टेड टॉक सुनते, कोई अच्छे बिजनेस चैनल में टाइम स्पेंड करते, तो नॉलेज मिलेगा। बात समझ रहे हो आप? तो अपने आप को ना इस चीज के लिए रेडी कर लो अश्मित आज से। स्नेहा आप भी। 2 साल और बचे कॉलेज के, 1 साल तो बर्बाद कर दिया, कुछ किया नहीं। फैक्ट है ना। 4 साल की बीकॉम। हाँ, 4 साल की होगी बीकॉम। 4 साल की बीकॉम है। चलो 1 साल तो बर्बाद कर दिया, 3 और बचे हुए हैं, है ना। तो अभी कर लो, वरना आने वाले 40 साल बहुत पछताओगे। सर ने बताया था लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। पेरेंट्स ने बहुत बोला पढ़ लो, सिर्फ पढ़ लो नहीं, जो मैंने अभी बात बताई साथ में अदर चीजें बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल का जितना वर्ल्ड इवॉल्व हो रहा है ना अश्मित, स्नेहा, सिर्फ पढ़ने से भी सब कुछ नहीं हो रहा है। बाहर दुनिया की नॉलेज बहुत बड़ा फैक्टर है। ये पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, सबने देखा, लेकिन क्या उसके पीछे की कहानी सबने सुनी और समझी? नहीं। बस आज कहाँ गोले गिरे, कौन सी यूनिवर्सिटी के बच्चे भाग रहे हैं, कौन से बच्चे पोस्ट कर रहे हैं, हम रीशेयर कर रहे हैं, बस ये सब चल रहा है। उसका इम्प्लीकेशन, आज इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, हमारी इकोनॉमी पे कितना इम्पैक्ट पड़ा, कभी इस बात पे रिसर्च करने की कोशिश की? कितना पोर्शन ऑफ द एम्यूनेशन जो हमने यूज किया वो हमने इंपोर्ट किया है। अब खत्म हो गया, अब गोला बारूद तो खत्म हो गया, वापस से चाहिए, फिर खरीदना पड़ेगा। अब इससे हमारी फॉरेन एक्सचेंज कम होगी। भाई यूएस से खरीदोगे तो डॉलर हमारा एक रिजर्व है,
आरबीआई के पास, वो तो कम हो गया, उससे हमारी आर्थिक स्थिति खराब होगी। जस्ट मैं एक आइडिया दे रहा हूं, एक एंगल दे रहा हूं, जस्ट टू थिंक। कुछ चीजें अपनी ना टू डू लिस्ट बना लो कि भाई मुझे ये काम अपने दिन भर में करना है। न्यूज़पेपर देखना है, 1 घंटा न्यूज़पेपर रीड कर लिया। 1 घंटा मेरे को बिजनेस न्यूज चैनल देखना है, चाहे वो CNBC TV 18 हो, जी बिजनेस हो, और भी बहुत सारे हैं, कुछ भी हो। 1 घंटा मुझे अच्छी टेड टॉक सुननी है, कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा। कोई अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है तो लो। 1 घंटा कोई ना कोई अच्छी बुक पढ़ो, बिजनेस से रिलेटेड हो गया, फिनेंस से रिलेटेड हो गया, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो गया, कुछ ना कुछ सीखोगे ही। देखो मेरा पर्सनल जो फायदा होना था वो तो हो गया, मुझे पैसे मिलने थे, मिल गए, करेक्ट। आपने मेरी कोचिंग ज्वाइन कर ली, करेक्ट। बट अब आपको अपना फायदा सोचना है कि हाउ यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ इट। ठीक है ना। मैं चाहता तो इतना कम्युनिकेशन कौन करता है, कोई करता है? काम किया सब भागते हैं। लेकिन व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी इज योर सक्सेस। आज आप सक्सेसफुल बनोगे, 5 साल बाद मुझे याद करोगे कि हाँ दीपक सर ने कुछ बताया था। ठीक है ना। बस तो कुछ चीजें अपनी टू डू लिस्ट में बना लो एंड मेक श्योर यू डू इट डेली। आपका ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं है, और सारी चीज सस्ती है। कोई ऐसा नहीं है घर की बहुत ज्यादा संपत्ति लगने वाली है। न्यूज़पेपर 5 रुपए का, टेड टॉक यूट्यूब पे फ्री है, बिजनेस न्यूज चैनल टीवी पे या यूट्यूब पे फ्री है। कोई भी एक बुक, फिनेंस की बुक ले आओ, 500 रुपए की आएगी, 1 महीना तक पढ़ लो तो बहुत बड़ी बात है, वरना तो हो सकता है तुम 6 महीने चला दो। ठीक है ना। 1 महीना पढ़ लोगे तो 500 रुपए का बुक का खर्चा है, उसको भी वापस रद्दी में बेचोगे तो 20 रुपए तो आ ही जाएंगे। ठीक है ना। तो कोई मैंने बहुत खर्चा वाला स्कीम नहीं बताई है कि सर आपने बहुत खर्चे वाली स्कीम बता दी है। स्टॉक मार्केट फॉलो करो, जीरोधा पे अपना अकाउंट बना लो। अभी शायद स्नेहा का पीसी में मैंने देखा शेयर्स खुले हुए थे, तो आई थिंक शी ट्रैक्स, तभी ओपन थे उसके टैब। Actually, this laptop is not mine. अच्छा, तो मैं ऐसे ही सोच रहा था स्नेहा बहुत ज्यादा शेयरों में ऑब्जर्व कर रही है, इन्वेस्टमेंट screener.com, सो मेनी थिंग्स आर ओपन, तो मेरे को लगा बहुत कुछ कर रही होगी वो, तो अश्मित पीछे रह गई। तो ये सारी चीज करो, शेयर मार्केट फॉलो करो, एक मनी कंट्रोल का ऐप है, मोबाइल में डाल लो, रोज क्या हो रहा है शेयरों में चेक करो। आज आपने एक 10 शेयर पिक कर लिए, उस 10 शेयर पे पिक करो, स्टडी करो, क्या बिजनेस करते हैं, कॉम्पिटिटर कौन है, क्या कैसे कमाते हैं, नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है, प्रॉफिट में है, लॉस में। अकाउंटिंग तो आती है 11-12 की, बैलेंस शीट पीएल तो देख ही सकते हो, ये तो पता चल जाएगा कौन प्रॉफिट में कौन लॉस में है। रेशो भी पढ़ा ही है 12 में, किसका पी रेशो है, करंट रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, सब तो पढ़ी है। देखो, अरे कुछ नहीं समझ में आया तो चैट जीपीटी करो। देखो टेक्नोलॉजी है, उसका फायदा उठाओ, कोई बुराई नहीं है टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने में। चैट जीपीटी है, डीप सीक है, बहुत सारी चीजें हैं, बट इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, ट्रस्ट में कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना। अगर एक यूज बता दो अश्मित और स्नेहा इंस्टाग्राम का, एक सिंगल यूज, अकाउंट ही डिलीट कर दो, ना लाइक्स का झमेला, ना फॉलोअर्स की टेंशन। ठीक है ना। और पता है आधी जो लाइफ आप लोग जीते हो ना, आप लोग जी सोशल मीडिया के ले रहे हो। आई हैव टू लुक ब्यूटीफुल जस्ट फॉर इंस्टाग्राम, क्योंकि आई हैव टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। देखो करेक्ट है कि नहीं है, सच बताना, झूठ मूठ कहाँ कर रही हो सच में। मतलब और किसी का ही नहीं, मैं मेरी बहन का बता देता हूँ। शी गेट रेडी, शी टेक पिक्चर एंड पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम जस्ट टू सी हाउ मेनी लाइक्स आए। मतलब उसको ये नहीं है कि वो रेडी हुई टू गेट रेडी फॉर हरसेल्फ। क्या होता है, वी गेट रेडी फॉर आवरसेल्फ, वी शुड फील गुड अबाउट आवरसेल्फ, बट intention was that others should feel good about herself that she is looking pretty. ठीक है ना। दुनिया के लिए जब से जीना छोड़ दोगे, खुद के लिए जियोगे, बहुत लाइफ चेंज हो जाएगी, बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। 3 साल गिव योर बेस्ट। हो सकता है मैंने बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया हो which you don't like, बट अगर उसका 1% भी फॉलो कर लिया ना, ट्रस्ट मी आई एम हैप्पी। ठीक है ना। 2 साल बाद आई विल गेट अ गुड रिजल्ट एट द एंड। ठीक है। चलो अभी पढ़ाई शुरू करो एंड मेक द दीज 5 थिंग्स एज अ टू डू लिस्ट। मन नहीं करेगा तो भी करो। घर में तोरी बनती है, मन नहीं करता है खाने का, मम्मी कैसे खिलाती है वो याद कर लेना। ठीक है। द सेम वे तोरी भी शरीर के लिए फायदा करेगी और ये भी करेगा। ठीक है ना।
Chalo. Thank you. Thank you. Thank you.